ਹਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਅਕਾਲ। ਬਬਲੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਸ਼ਵੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਮਿਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੇਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਾਇਓ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਜ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਈ देयर इज क्राइसिस इन एडिक्शन ट्रीटमेंट। क्राइसिस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ क्राइसिस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैम ने बताया वाई। वाई मतलब क्यों। क्यों एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा चलता रहता है। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्यों करना है। अगर हमें क्यों का जवाब पता होएगा तो फिर हमें ये पता होएगा कब करना और कैसे करना है। जब हमें वाई का आंसर मिल जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि व्हेन वी हैव टू डू इट एंड हाउ वी हैव टू डू इट। और आपकी सपोर्ट जैसे बताया गया, जब तक आपकी सपोर्ट नहीं होगी हम कर नहीं पाएंगे। इसमें क्राइसिस का मतलब होता है, अगर मैं जनरल टर्म में बोलूं, मुक जानी कोई चीज, सोखा पै जाना, खत्म हो जाना। जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, पैसे खत्म हो गए, ऐसी स्टेज आ गई कि घर में अब पैसे खत्म हो गए हैं, हमें अपने रिसोर्सेज खत्म हो गए, हमें समझ नहीं लग रही क्या करना है। इन द सेम वे हमारे एडिक्शन के ट्रीटमेंट में या जितनी साइकोलॉजिकल हमारी एलिमेंट्स होती है उसमें क्राइसिस आते हैं कि हमारी वो वाली स्टेज आ जाती है कि जब हमारी हद खत्म हो जाती है, देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। आई थिंक वी हैव शेयर्ड दिस थिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स कि हम आते तब हैं जब एक्सट्रीम में हमें बिहेवियर दिखने लग पड़ता है। जब छोटे 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 हमें बिहेवियर पहले दिख रहे होते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ये कह के सारे बच्चे करते हैं, टीन एज है, कोई बात नहीं। अगर मेरे बच्चे ने कहीं अल्कोहल ले ली या बियर पी ली या किसी के साथ कोई चीज यूज कर ली, नॉट अब्यूज, उसने बताया तो है ना आके, चलो एटलीस्ट मेरे साथ ऑनेस्ट तो है ना, उसने बता दिया मम्मा आज मैं फ्रेंड्स के साथ गया था। तो हम जब तक क्राइसिस नहीं आता हम भी कोई स्टेप नहीं लेते। होना क्या चाहिए, देखो जो समझदारी है वो ये है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं किसी के लाइफ में तो बंदे पहले ही कुछ 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 सेविंग करना शुरू हो जाते हैं ताकि हम उस स्टेज पे ना पहुंचे कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। हम उससे बचने के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ अपनी अरेंजमेंट्स ऐसे करते हैं अपनी लाइफ में कि कभी ऐसे ना करना पड़े किसी के आगे, राइट। बट जहाँ ये मेंटल हेल्थ की बात है या जहाँ पे हमारी एडिक्शन की प्रॉब्लम्स है या कोई भी साइकेट्रिक इलनेस की प्रॉब्लम है,
वहां पे हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें पहले से ही कर लेना चाहिए। तो आज मैं फर्स्ट जो हमारा है, शेम एंड स्टिग्मा, हमारी शर्म और हमारी जो स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना पड़ना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये कहा गया था, आज से 15 साल पहले एक रिसर्च थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को चेक करना शुरू कर दो तो आप आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हो। ऑनेस्टली सेइंग, हम सबको पता है डायबिटीज क्या होती है, हम सबको पता है कहीं ना कहीं थायराइड क्या होता है, हम सबको पता है एचबी कम होता है तो क्या होता है, हम सबको पता है कि अगर किडनी में स्टोन है तो यहाँ से पेन पीछे जाएगी तो किडनी में स्टोन है। हम सबको पता है कि भूख नहीं लग रही, नौजिया हो रहा है तो पेट वाले डॉक्टर के पास जाएं, और हम इमीडिएटली जाते हैं और शायद हम मशवरे भी लेते हैं बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों से सलाहें भी लेते हैं, अच्छा कौन सा डॉक्टर अच्छा है, किसके पास जाया जाए। बट क्या कभी हमने मेंटल हेल्थ के लिए सोचा है कभी कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए? किसी भी स्टेज में, मेरी भी इतनी एज हो गई है, आप सबकी इतनी एज हो गई है, क्या पिछले 10-20 सालों में कभी लगा कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके पूछ लें? हमारा मूड, हमारी इमोशंस इतनी ऊपर नीचे होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं कि हम कभी भी नहीं जाते। जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे चेक रखते हैं वो क्राइसिस पे नहीं जाते, फिर उनको क्राइसिस कभी नहीं होता, उनको बीमारियां नहीं लगती, फिर वो बीमारियों में तब्दील नहीं होते। अगर हम इनिशियली मेंटल हेल्थ पे चेक रख ले, अपनी ये शेम और स्टिग्मा छोड़ दें, जब हमें पेट वाले डॉक्टर के पास जाने में कोई शेम कोई स्टिग्मा नहीं है, तो हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने के लिए क्यों स्टिग्मा है? आप मुझे बताओ, आप में से कभी किसी का मूड खराब नहीं हुआ? किस किस का मूड खराब होता है, चलिए हाथ खड़ा करेंगे। होता रहता है। किस किस की नींद कभी खराब नहीं हुई? होती रहती है। किस किस को रोना आता है बीच में? किस किस को गुस्सा आता है बीच में? देखो, अब ये 4 मैंने मोटी मोटी, किस किस को बीच में भूख नहीं लगती, अच्छा ही नहीं लगता कुछ, राइट? भूख ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना, आसपास सब खुश है पर मैं खुश नहीं हूँ, अपना मन खराब रहना, मूड ऑफ रहना, चिड़चिड़ाहट आनी छोटी छोटी बातों पे, और ऐसा लगना कि सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। ये छोटी छोटी सी हमारी इमोशंस है और कहीं ना कहीं शायद ये बचपन से ही चल रही हैं और हमने कभी चेक नहीं किया। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो। देखो, क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर अभी सिर्फ मूड खराब है, अभी सिर्फ मूड थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है और आप जाके कंसल्ट करते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, तो शायद बहुत सारी दवाइयां ना शुरू करनी पड़े। अगर सिर्फ एंजाइटी है, डर लगता है, देखो बहुत सारे लोगों को ये सोच आती है रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को ये सोच आती है कि आज मैंने सैंपल दिया है, मेरे टेस्ट कहीं ज्यादा खराब ना आ जाए, कहीं मेरी किडनी के टेस्ट ना खराब आ जाए, कहीं मेरा ये ना खराब आ जाए। तो ये जो सोच है, क्या ये नेगेटिव सोच है कि पॉजिटिव सोच है? नेगेटिव सोच है। अगर हमें इतनी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं अलग अलग चीजों को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके, इसका मतलब है कुछ तो मसला है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर आपको परसिस्टेंटली 7 डेज नींद नहीं आ रही, अगर आपको परसिस्टेंटली 7 डेज आपका मूड ऑफ रह रहा है, परसिस्टेंटली 7 डेज खिज चढ़ रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, आपको परसिस्टेंटली 7-8 डेज धड़कनें बढ़ रही हैं, डिप आ रहा है, लो मूड है, दैट मीन्स आपको इमीडिएटली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है। आप अपने लव्ड वन के लिए यहाँ पे हैं, पर आपका लव्ड वन तब ठीक होगा जब आप ठीक होंगे, जब आप पॉजिटिव होंगे, आपके पास पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। लास्ट वीक की याद है मुझे बात, जब हमने अभी सेलिब्रेट किया है दिवाली, तो वन ऑफ द पेशेंट्स मदर, शी केम टू मी एंड शी हैज स्टार्टेड सम ट्रीटमेंट फॉर हर, और कहते हैं कि मैम मेरे को ना वो वाली खुशी नहीं आ रही,
सब डांस कर रहे थे, सब खुश थे, पर मेरे अंदर से वो वाली खुशी नहीं आई अभी। तो इज इट नॉर्मल? मैं दवाई भी ले रही हूँ पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब सब कुछ अच्छा था, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, सब बच्चे खुश हो रहे थे, मेरा बेटा भी खुश हो रहा था, पर मैं खुश नहीं थी। सो देन व्हाट आंसर आई गेव टू हर कि इसका मतलब अभी भी कुछ केमिकल इम्बैलेंस है अंदर। नहीं, कोई बात नहीं, अब आपको हम थोड़ा खुशी वाली साइड पे देखेंगे आने वाले टाइम में। तो वी नीड टू सी, वी नीड टू असेस कि स्टिग्मा शेम छोड़ के अगर इनिशियली हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर ले तो हम बच सकते हैं, हम बेटर हो सकते हैं। वी ऑल, जो यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन बैठे हैं, उनको अपने मेंटल हेल्थ के लिए चेक रखना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सब तो बहुत रखते हैं। हम सब साइकोलॉजिस्ट, हमारा टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, जैसे ही हमारा मूड डिप जाता है किसी दिन, तो हम तो एक दूसरे को देख के बोल देते हैं, देयर इज समथिंग, कैन वी शेयर, कैन आई हेल्प यू। तो हमारी शेयरिंग से ही वो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं है कि वी आर प्रोफेशनल्स तो हमारे मूड लो नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब साइकेट्रिस्ट है तो उनका मूड लो नहीं हो सकता। इट इज अ नॉर्मल थिंग, बट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे मरीज के साथ साथ हम भी डिनाइल में हैं। हमारा थोड़ी मूड ऑफ हो सकता है, हम थोड़ी दवाइयाँ खाएंगे, ले उसको दवाइयाँ शुरू की है, हम भी दवाइयाँ शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब है देयर इज सम केमिकल इम्बैलेंस इनसाइड एंड इट्स विद एवरीवन। तो हम शेम और स्टिग्मा को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, ताकि हम बेटर हो सके। तो जैसे मैम ने बोला मेंटल हेल्थ चेक, है ना? तो कुछ कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो एक फुल फ्लेज्ड डिजीज आ जाएगी। तो इससे बेटर है ना कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को ही टैकल कर ले, ताकि वो फुल फ्लेज डिजीज या एक इलनेस ना बन जाए। क्योंकि इलनेस अगर बन गई तो फिर इसका मतलब है कि वो बीमारी प्रोग्रेस कर गई है। तो जब हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो वो क्राइसिस की बात यही कर रहे हैं कि जब तक वो इलनेस बनेगी, या एडिक्शन में स्पेसिफिकली हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि जब वो शुरू हुई, उसके साइंस एंड सिम्टम्स आए, इश्यूज आने शुरू हुए, हमारे को किस चीज़ ने रोक लिया? वो शर्म, वो जो शेम था, ठीक है, वो स्टिग्मा था, एक टैबू जो एक लगा हुआ है धब्बा कि हाँ भी ये मेंटल, ये साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, ये तो दिमाग खराब हो गया, है ना? ये जो स्टिग्मा हमें रोक लेता है, वो क्या करता है कि बीमारी उतनी देर में, क्योंकि बीमारी तो प्रोग्रेसिव है, बीमारी उतनी देर में प्रोग्रेस कर जाती है। और अगर हम ये जो स्टिग्मा है ये नहीं छोड़ेंगे तो हमारे घर में ना हम ठीक हो पाएंगे, ना ही हमारे लव्ड वंस ठीक हो पाएंगे। तो हम और किसी बीमारी में ये स्टिग्मा नहीं दिखाते। हल्की सी चेस्ट पेन होती है, हम फटाफट चले जाते हैं हार्ट के डॉक्टर के पास, ठीक है? घुटनों में दर्द आनी शुरू होती है, वॉक के टाइम पे हम फटाफट चले जाते हैं कि मैं एक्सरे करा लूँ कि घुटने क्या दर्द क्यों हो रही है, ग्रीस कम हो गई है या चेंज कराने हैं या क्या करने हैं, हम फटाफट चले जाते हैं। वहाँ शर्म नहीं आती। वहाँ के हम इश्यूज़, फिज़िकल हेल्थ में जो इश्यूज़ आते हैं ना, हम फटाफट कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, हम वो इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं करते। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो क्या मेंटल हेल्थ मेरे बीइंग का पार्ट नहीं है? ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਦਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਘਿਸਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੌਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ? ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਿਗਮਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 30s ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, 40s ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 30s ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 40s ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ क्या है वो लाइन, क्या है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वो ही है स्टिग्मा हमारा, क्या है कि हम वो डॉक्टर के पास टाइमली जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये शर्म ही हमें बहुत रोक लेती है। तो चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज ले लो, चाहे वो एडिक्शन ले लो, साइकेट्री इलनेसेस में जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्राइसिस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब तक हम एक ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं तब तक हमारी बस हो चुकी होती है। मैम ने बहुत सुंदर बात करी है कि एक टाइम पे हमारी कैपेसिटी और हमारी टॉलरेंस दोनों खत्म हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये है कि लोग ये कह कह के, भाई तू तो बहुत स्ट्रांग है, तूने तो सारी जिंदगी की है, अब तुझे क्या हो गया, अब तुझे किस चीज की जरूरत है, अब क्यों डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तुम तो शुरू से ही, मैंने तुम्हें देखा है, तुम तो इतने एक्टिव, इतने अच्छे, इतने रिस्पॉन्सिबल रहे हो, अब क्या हो गया, अब कैसे हो गया। द वे शी इज एक्सप्लेन कि देयर इज अ टाइम जब आपकी बॉडी थक जाती है। हमारा जो ब्रेन है, हम माइंड भी बोलते हैं, बॉडी का तो हिस्सा है हमारा। जब हम हार्ट के टेस्ट करा रहे हैं, बाकी सब करा रहे हैं, अच्छा किसी ने कभी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कराई है कभी अपनी जाके? किसी ने कभी ये सोचा है कि चलो एमी एमआरआई करा लो, एमी जाके डॉक्टर से कुछ पूछ लो, चलो एक डिप्रेशन का स्केल लगवा लो जाके कि शायद डिप्रेशन हो? ये हम सोचते ही नहीं है कभी। हम यहाँ दर्द होएगी, हम फटाफट जाएंगे ईसीजी करा लो, फटाफट डॉक्टर सलमान के पास जाएंगे, ईसीजी करा लो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये नहीं सोचते ये गड़बड़ यहाँ से भी आ सकती है, हो सकता है कोई एंग्जाइटी है जिसकी वजह से पेन हो रही है या हार्ट बीट बढ़ रही है कुछ नहीं हमारी। भी है, फिर भी 3-6 महीने बाद जी लीवर किडनी दे टेस्ट करा लो, सब ठीक चलता पे। जनरली कराते रहते हैं हम, पर कभी हमने वही है ना, Overall, पैकेजेस बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कभी हमने अपना ब्रेन का चेकअप नहीं कराया, कभी नहीं गए हम। और जो हमारी कैपेसिटी और टॉलरेंस जो हमारी कम होती है ना, एक हमारे ब्रेन का भी ना एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है उसकी भी। जैसे हमारी जुबान सूखती है और हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, इंडिकेशन है कि मुंह सूख रहा है, पानी पी लो। ऐसे ही हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स हैं जो मैं लेमैन टर्म में बताऊंगी, वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। वो फिर हमें बाहर से देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, या फिर धीरे धीरे काउंसलिंग के साथ, मेनली तो मेडिकेशन के साथ वो इम्प्रूव्ड होते हैं। तो वो केमिकल्स कभी भी किसी भी एज में सूख सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन इंसिडेंट्स, या कोई घर में प्रॉब्लम है। और ये आपको बता दें, एक रोगी के साथ हम रोगी होते हैं हम। अगर घर में किसी को कैंसर हो गया है तो घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनमें इक्विवेलेंट स्ट्रेस आ जाता है, इतनी भाग दौड़ मच जाती है घर में। तो ये जो एडिक्शन है या जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये तो वैसे ही बड़ी वास्ट है। इसमें लेकिन हमें होता है दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, टीवी की आवाज ऊंची कर दो, लाउड म्यूजिक लगा दो, बाहर ना आवाज जाए, गली मोहल्ले वालों को पता ना चल जाए। अभी चेस्ट की पेन होएगी तो हम शोर मचा देंगे फटाफट, प्लीज हेल्प करो, प्लीज आओ। और अगर हमारा पेशेंट गालियां निकाल रहा है पी के या नशा करके या कोई और बिहेवियर कर रहा है, तो हम करेंगे दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, म्यूजिक इतना लगाओ कि किसी को पता ना लगे। और ये आपको बता दे, उनको पहले पता होता है, हमसे भी पहले उनको पता होता है, मोहल्ले वालों को या हमारे गेट कीपर्स को या हमारे गार्ड्स को या माली को, उनको सबसे पहले पता होता है, हमारी मेड को पहले पता होता है इनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये स्टिग्मा और शेम हम नहीं करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। एंड मोर ओवर ये बता दूं, ये बिल्कुल नॉर्मल है जब आपके घर में बीमारी आई है किसी भी तरह की, जैसे मैंने कैंसर की बात की या हार्ट अटैक की बात की,
एडिक्शन भी बीमारी है, अगर हमारे घर में आएगी तो हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्टेड होएगी। हम कहते हैं एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स अ मूड डिसऑर्डर। तो जब एडिक्शन एक मूड डिसऑर्डर है जिससे हमारा लव्ड वन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को भी है, तो उसके मूड का क्या हमारे मूड पे इफेक्ट नहीं आएगा? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हमारा मरीज सुकून से नहीं है तो क्या हम सुकून से बैठ सकते हैं? हम तो कभी भी नहीं बैठ सकते। बट हम ये चीज को एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर हमें भी क्राइसिस आ जाता है एक दिन। फिर एक दिन हमारी इतनी सैचुरेशन आ जाती है, इतनी सैचुरेशन आ जाती है, हमारी टॉलरेंस खत्म हो जाती है, हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तब तक हमें डिप्रेसिव एपिसोड कोई ना कोई आ ही जाता है या एंजाइटी का एपिसोड आ ही जाता है। तो बिफोर इट कम्स हमें अर्ली इंटरवेंशन करनी चाहिए। अर्ली क्राइसिस इंटरवेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर इट। फॉर एनी काइंड ऑफ मूड इश्यूज, स्लीप इश्यूज, कुछ भी आपको होता है, हम पहले अर्ली इंटरवेंशन करें। ठीक है जी? जी जी जी, शो। तो आपने बोला ना कि सोसाइटल स्टिग्मा और शेम, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी ये चीज़ फेस की है रिगार्डिंग पेशेंट, नहीं अपने रिगार्डिंग। मेरे को काफ़ी इंसोम्निया रहा है मल्टीपल रीजंस की वजह से, जैसे हाउस होल्ड इशूज़। फिर डेफिनेटली पेशेंट था पर आइडेंटिफाइड नहीं था, पर कई बार उसके भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते थे तो समझ नहीं आती थी। एंड आई नेवर वेंट फॉर, एंड मैंने कभी कोई वो नहीं लिया, हेल्प नहीं ली। बस वो पता क्या था, मैं तो हमेशा से कभी आज तक मैंने नींद की तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही है। मैंने तो कभी चाय कॉफ़ी भी नहीं ली है, और मेरे को तो कभी एग्ज़ाम टाइम्स में भी कभी नींद के इश्यूज़ नहीं आए हैं। मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं ली है। मैं मेडिसिन लेके क्यों मेडिसिन लेके सोना एक ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कुछ गलत काम मैं करूँगी अगर मैं मेडिसिन लेके सोऊंगी तो। जबकि मेरे बॉडी में इतनी और मेरे एनवायरनमेंट में इतना उथल पुथल चल रहा था। मेरे फादर बेड रिडन है, मैं उनकी केयर गिवर हूँ, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन फिर भी ये था कि नहीं नहीं नहीं, ये काम तो कर लिया जाएगा क्योंकि इतने सालों से कर रहे हैं, और मैं तो इमोशनली बड़ी स्ट्रांग हूँ। वो जैसे आपने बोला ना कि सब हाँ धक्का धक्का करते किया ना रहते हमने हैं। अपने साथ। हाँ मैम एक मिनट में आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ, अपना हाँ, प्रोफेशन बताइए सबको। मैं डॉक्टर हूँ। तो अब देखिए, डॉक्टर होके हम नहीं अपने साथ धक्का करते रहे करते हैं, कितनी देर, बिल्कुल राइट? करते हैं। कितनी देर करते रहे, और ये हम्म। कितनी देर चला? ये तब तक चला जब तक मेरा पेशेंट क्राइसिस में नहीं गया, और जब उसकी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आए तो हमें समझ आया कि हमारे साथ भी, हमें भी इसकी ज़रूरत है। उसको तो है ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत, हमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमारे भी इश्यूज चल रहे हैं जो हमने इग्नोर कर दिए। तो मुझे ये लगा कि इनफैक्ट वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पेशेंट कि पेशेंट हमें इधर लेके आया। नहीं तो मैं आपको सच्ची बताऊं, हम उस शेप में हम कभी भी नहीं आते। अगर हमारा पेशेंट इधर नहीं आता ना, तो हम अपने हमारे तो इश्यूज, हमको लगता था कोई बात नहीं, योगा करके, कभी स्विमिंग करके, कभी वो एक्टिविटी करके, बहुत सारी चीजें करके ऐसे हो जाएगा ठीक। एक बात मैं हाँ। आपको बता दूं, ऑनेस्ट फीडबैक, अगर हम सब भी इस फील्ड में ना होते तो हम सब आपकी जगह बैठे होते, ऑनेस्टली। बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड, तो हम अपनी इमोशंस, मूड को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं। अब इट्स नॉट, आई एम अगेन टेलिंग इट टू एवरीवन, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लेमैन हैं या हम हाउसवाइफ्स हैं या हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम किसी भी फील्ड में हैं, हम किसी भी हाई पोस्ट पे भी हैं। ये एक ऐसी हमें शेम और स्टिग्मा होती है मेंटल हेल्थ की कि हम नहीं कर पाते हैं शेयर, और शायद हमें अवेयरनेस ही नहीं होती, हमें समझ ही नहीं होती है कि बीइंग डॉक्टर अगर मैम को इतना टाइम लग गया तो हम तो फिर कभी भी लेट हो ही सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि इससे पहले की क्राइसिस आए हम पहले शुरू कर दें। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, हमारी फैमिलीज कुछ नहीं आई हैं, 7 दिन से लेके 14 दिन का टाइम होता है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपकी भूख डिस्टर्ब है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका मूड खराब है, आपको रोना आ रहा है, आपको आसपास की चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, दैट मीन्स आपको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। अगर एक दिन नहीं आई और अगले दिन आपने मैनेज कर लिया और फिर महीना मैनेज कर लिया, देन इट्स ओके, चलो फिर तो कभी कभी हो जाता है। बट अगर परसिस्टेंटली लगातार कंटिन्यूस आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, यू नीड टू कीप अ चेक। एंड प्लीज, आपको पता है कि मेरी एक फ्रेंड है, शी इज इन कनाडा, शी इज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हमारे साथ ही पढ़ती थी। उसका कहना है कि इंडिया में और वहाँ पे फर्क ये है, कहती है वहाँ पे मेरी डिमांड बहुत है, साइकेट्रिस्ट से भी ज्यादा मेरी डिमांड है, एंड आई एम अर्निंग सो गुड बिकॉज ऑफ दैट। मैंने कहा वो कैसे?
कहते वहां पे जो साइकाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट है वो 6 मंथ्स बाद मिलती है या 3 मंथ्स बाद मिलती है। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली दे गिव मी अ कॉल एंड बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट डे और द सेम डे। कहते ये डिफरेंस है, बिकॉज वो आते हैं, वो शेयर करते हैं, वो वेंट आउट करते हैं एंड दे गेट द सोल्यूशन। दिस इज द डिफरेंस। इतना स्टिग्मा नहीं है वहां पे, इतना स्टिग्मा नहीं है। वो कहते हैं एक स्टिग्मा नहीं है, एक कहते हैं उनको साइकाट्रिस्ट लेट मिलता है इसलिए उनको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके हम अपनी शेयरिंग तो कर ले, क्या बोझ है अपना वो तो हल्का कर ले। पर हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर रखते रहते हैं, उसको हम पाइल अप करते रहते हैं, अपनी इमोशंस को, अपने मूड को। द वे यू आर सेइंग कि सारी जिंदगी इतनी स्ट्रांगली सब चीजें फेस की हैं तो आज क्यों नहीं कर सकती, आज भी करते हैं। पर एक हमारी बस हो जाती है अपने सिचुएशन से लड़ते लड़ते या अपने पेशेंट के साथ चलते चलते एक हमारा सैचुरेशन आ जाता है, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। एक होती है एक्सेप्टेंस, एक होती है ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे कि भाई यस, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, अब मेरी टॉलरेंस नहीं है, अब मेरे हाथ खड़े, अब नहीं मुझसे होता, अब मुझे कोई हेल्प सीख करनी है। चलिए के साथ ही आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कि क्यों क्राइसिस एडिक्शन के ट्रीटमेंट में इतने क्राइसिस मुश्किलें क्यों आती है, रीलैप्स साइकिल्स की वजह से। क्योंकि जब हम बीमारी की बात करते हैं, जब हम ये बताते हैं आपको कि ये बीमारी बड़ी पावरफुल है, कनिंग है, बैफलिंग है, तो हम आपको ये भी बताते हैं कि जो रीलैप्सेस हैं वो इस बीमारी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमने यहाँ पे मल्टीपल रिलैप्सेस होते देखे हैं पेशेंट्स के बिफोर दे गेट इनटू ऑन टू द ट्रैक ऑफ रिकवरी। और हर रिलैप्स के साथ हमने देखा है कि पेशेंट ने कुछ ना कुछ नया सीखा है। उसकी लाइफ वो ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुआ है, वो जहाँ से गिरा है वो वहाँ से शुरू हुआ है। बट क्या होता है कि जो फैमिलीज़ है, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं विद टाइम जब पेशेंट ठीक होना शुरू होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं और हमें वो अपना डे वन भूल जाता है, या हमें वो जो चीज़ें मीटिंग में बताई जाती हैं कि रिलैप्स भी हो सकता है, वो कहीं जब हम भूल जाते हैं और जब रिलैप्सेस 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है तो हम थक जाते हैं। वो हम थकते क्यों हैं? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। पर बीमारी जो है, हमने बार-बार बोलते हैं बीमारी प्रोग्रेसिव है। अब ज़रा-सी वो कहते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो वो वाली बात होती है कि जब फैमिलीज़ भी बिल्कुल नफरांग हो जाती हैं और पेशेंट्स भी नफरांग हो जाते हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होता है? रिलैप्स होने का। तो रिलैप्स के जो साइकिल्स हैं, अगर हम उनका ध्यान पहले रखें, जैसे मैम ने बोला इश्यूज को पहले ही एड्रेस कर लें। प्रोएक्टिव जब हम ये हैबिट सिखाते हैं आपको कि पहले से तैयारी करके रखें। जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं आपसे, वो इसीलिए करते हैं कि आप ये जो एक स्थिति है क्राइसिस वाली, इनसे आप बच सकें। जो रिलैप्स के साइकिल्स हैं, उनसे आप तभी बच पाएँगे जब आप अपनी नज़र इधर-उधर नहीं रखेंगे। जब आप नज़र नहीं हटाएँगे किससे? ट्रीटमेंट से। और अगर ट्रीटमेंट से नज़र हटी, तो फिर दुर्घटना क्या है? यहाँ पे तो रिलैप्स ही है। तो रिलैप्स के साइकिल जो बार-बार, बार-बार इस बीमारी में होते हैं, वो इसीलिए होते हैं और उसकी वजह से जो थकान है, वो फैमिलीज़ की फिर से वो सारी फ्रस्ट्रेशन, फिर से वो पुरानी पेन, फिर से वो सारा ताने करना, ब्लेम करना, फिर वो दोबारा फैमिलीज़ का भी रिलैप्स हो जाता है। पेशेंट के रिलैप्स के साथ किसका रिलैप्स हुआ? फैमिलीज़ का भी। जैसे एक एग्जांपल मैं दूँगी, हमारा पेशेंट बहुत अच्छा कर रहा था। जब वो आया था उनके घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। मदर और डॉटर इन लॉ के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे जब पेशेंट यहाँ आया। वो 3 महीने रहा, 6-8 महीने सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। 6 मंथ्स पता नहीं 8 मंथ्स सोबर रह के उसके बाद उसने चैनी-खैनी जो कूलिप वगैरह ली, वाइफ़ को पता चल गया। सो वाइफ़ के मूड के बड़े इश्यूज़ थे। सो 8 मंथ्स के बाद जब वो उसने कूलिप देखी पेशेंट की, सो उसका वो सारा पेन और टर्मोइल सारा वापस फिर से आ गया एंड शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड। पेशेंट 6-8 महीने से सोबर है, उसने कोई दूसरा नशा नहीं किया, उसने कूलिप लिया एक बारी और वाइफ ने पकड़ लिया। सो ये क्या हुआ कि रिलैप्स सिर्फ पेशेंट का हुआ कि फैमिली का भी हो गया? फैमिली का भी हो गया ना,
कि उनकी जो है, उन्होंने अपने मूड के ऊपर जो इतनी देर से काम किया, अपने रिएक्शंस पे, इम्पल्सेस पे इतनी देर से काम किया, जो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको बताते हैं, ऐसे आपने करनी है, 1 मिनट टॉक करनी है, पेशेंट का कोई बिहेवियर आपको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, तो आपने कैसे उनको नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है, कैसे प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, सब आपको ट्रेनिंग देते हैं हम। पर देखो 6-8 मंथ्स जब वो सोबर रहा, हमारी मीटिंग्स कम हो गई, हमने ऑनलाइन मीटिंग्स भी कम सुननी शुरू कर दी। एक स्टेज आ गई जब हमें लगना शुरू हो गया कि अब तो शायद पेशेंट खुद से कर सकता है। उस टाइम पे, ठीक है, जब आके एक स्लिप हुआ पेशेंट का, तो फैमिली का भी तुरंत ही रिलैप्स हो गया। तो वहाँ पे क्या है कि हमारी फिर से क्राइसिस सिचुएशन आ गई। तो हमने ये क्राइसिस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं, जैसे हमने पहले क्राइसिस सिचुएशन बोला, स्टिग्मा और जो आपका एक वो है कि आपकी शर्म जो आती है, ठीक है, उससे आप बचेंगे, उससे आप आगे निकलेंगे तो आप ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे ना। सो ये क्राइसिस हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि आप जो हमारी निगाह है वो हमने ट्रीटमेंट पे रखनी है। हम जब आपको बोलते हैं कि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, सदा चलने वाली है, आपको ट्रीटमेंट से जुड़े रहना है, आपको मीटिंग सुनते रहना है, मेंटल हेल्थ का चेक रखते रहना है, ठीक है? वो इसलिए ही कह रहे हैं ताकि आप ये वाली क्राइसिस सिचुएशन में बार-बार ना आएँ, ठीक है? क्योंकि जब-जब देखो रिलैप्स हो रहा है पेशेंट का, कुछ ना कुछ तो वजह रह ही रही होएगी ना, कुछ ना कुछ तो मिसिंग रह रहा होएगा। और जब पेशेंट के साथ-साथ फैमिली भी रिलैप्स कर जाती है, तो फिर वो शुरू से शुरू का सफ़र जो है, वो तो देखो मुश्किल होएगा ही। इसलिए हमारी क्राइसिस सिचुएशन बन जाती है फिर से। जब किसी को हार्ट के स्टंट पड़ते हैं, डॉक्टर स्टंट डालता है, इज इट पॉसिबल इसको दोबारा कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा? आ सकता है दोबारा। उसके रीजंस कई हो सकते हैं। हो सकता है कि जो डॉक्टर ने उनको फॉलो अप करने के लिए बोला या जो दवाइयाँ खाने के लिए बोला वो दवाई नहीं खाई गई। जो खून पतला करने वाली दवाई थी या कोई और चीज़ें थी, उन्होंने वॉक करने के लिए बोला, हैवी फूड खाने के लिए मना किया, घी मक्खन खाने के लिए मना किया, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। इन द सेम वे हो सकता है वो स्टंट शायद अपनी जगह से हिल गया या कुछ हो गया नेचुरली, जिसकी वजह से फिर से प्रॉब्लम आई। तो अगर एक स्टंटिंग होने के बाद दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है, उसको हम रिलैप्स बोलेंगे। अगर दोबारा रिलैप्स हो सकता है तो एडिक्शन की बीमारी हम समझ लें, या कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस है हम समझ लें, कभी भी उसका रिलैप्स हो सकता है। रादर दिस डिजीज इज डिजीज ऑफ रिलैप्स। हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना कि अच्छा रिलैप्स होना है, फिर हम इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको हार्ट के पेशेंट की एग्जांपल इसलिए बताई है, और कई और बीमारियों में भी, कि स्लिप या रिलैप्सेस तब होंगे जब हम डॉक्टर की हिदायतों को मानना बंद कर देंगे। किसी को अर्थराइटिस है, किसी को गाउट्स होते हैं और वो मेडिसिन ले रहा है, और जब वो मेडिसिन लेना बंद कर देगा अर्थराइटिस फिर से आएगा। किसी को अस्थमा है, वो अपना इनहेलर लेना बंद कर देगा, तो इस मौसम में तो उसको सांस का अटैक आ जाएगा, वो तो पूरा क्राइसिस में चला जाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, रिलैप्स से हम बच सकते हैं अगर हम रिकवरी प्रोग्राम में है। दिस इज रिकवरी प्रोग्राम। ये जो आप मीटिंग्स में आते हैं, अटेंड करते हैं, एंड इट्स ट्रूली सेड बाय मैम कि आफ्टर सम टाइम, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 1 ईयर, जो हमारी फैमिली की विल यहाँ होती है वो यहाँ चली जाती है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हाँ, हैं। और एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। फिर वो एक्सपेक्ट करना शुरू जाते हैं कि अब ये कमाने भी जाएगा, अब ये बाहर भी जाएगा, अब इसको पैसे भी दे दो, अब सब कुछ कर दो, कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज फाइन। नो, हमें ये याद रखना है कि ये बीमारी जो है ये चकमा देने वाली है। इसने चकमा देना है कहीं ना कहीं, इसने कहीं ना कहीं अपना शिकंजा कस लेना है, बिकॉज ये पावरफुल है, और ये बैफिल करने वाली भी है, धोखा देने वाली भी है कहीं ना कहीं। जब तक हम एक ट्रैक पे रहेंगे, पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करते रहेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए अगर आप हमें अप्रोच करेंगे और समझेंगे इस चीज को, तब तक रिलैप्स नहीं होगा। रिलैप्स तभी होगा जब आप हटेंगे थोड़ा सा हमसे, जब आप दूर जाएंगे थोड़ा सा। मैंने अपने इन 24 इयर्स में देखा है कि कई बार 8-8 साल रिलैप्स नहीं होता।
8 साल बाद जब रिलैप्स हुआ और जब हमने उसका कारण पूछा, वाई जब हमने पूछा, तो हमें वही चीजें मिली कि अब तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब तो लाइफ बहुत खुशहाल थी, अब तो बहुत बढ़िया थी। वो इसके पास पैसे इतने सारे आ गए, तो ये कब चला गया हमें पता ही नहीं चला। तो हमें ये चीजें, कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ हमारी जो स्टैंड्स हैं उसको फॉलो करना है। एंड जो रिलैप्सेस हैं, मैम बिल्कुल ठीक कह रही है कि हम अक जाते थक जाते हैं। हमें ये समझना है कि ये बीमारी है और ये लग गई है, और इस बीमारी में रिलैप्स कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स भी आ सकता है, 15 ईयर्स भी आ सकता है। पर रिलैप्स कब नहीं आएगा? जब हम अपने प्रोग्राम से, अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं, जब हमें कुछ चीजें दिख रही हैं। आपको मैं बता दूं, पहले अलामतें आती हैं, पहले कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आती हैं, फिर जाके रिलैप्स होता है, ऐसे नहीं हो जाता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताना चाहती हूँ। आई वर्क विद मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन फॉर सो मेनी इयर्स, राइट। तो उनको ना टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई हमने मिलके और मैंने। और उनकी फैमिलीज कहती थी, आपको कैसे पता चल जाता है, आपने कैसे इनको ट्रेन किया? हमारा बच्चा हमारे पास सारा दिन रहता है, हमें नहीं पता लगता। मैं कहा, जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे मैम ने कहा, नजर रखोगे, तो आपका बच्चा जब उसने यूरिन पास करना होता है, जब उसने स्टूल पास करना होता है, एक इंडिकेशन देता है, एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देता है। कोई ऐसे करता है, कोई चीची करता है, कोई नीचे बैठ जाता है। मैं कहा, आई ऑब्जर्व दैट इंडिकेशन। उस इंडिकेशन को ऑब्जर्व करके मैंने उसको ट्रेन किया। उनको बोलना नहीं आता था, ऑटिस्टिक बच्चे थे, कई एक्सप्रेशन नहीं आते थे, कुछ डाउन सिंड्रोम के थे, बहुत सारे थे। बट जब वो ऑब्जर्व किया, उनकी प्री इंडिकेशन ऑब्जर्व की और उनको टॉयलेट उस टाइम पे लेके जाया गया, तो धीरे धीरे वो टॉयलेट ट्रेनिंग आ गई उनको, राइट। अब ऐसे ही जब हमारे रिलैप्सेस होते हैं, पहले इंडिकेशन आएगा। हमारा इमोशनल रिलैप्स होता है, हमारा साइकोलॉजिकल रिलैप्स होता है, हमारा फिजिकल रिलैप्स सबसे लेट होता है। हमारे मरीज की इमोशंस, उसका मूड अप एंड डाउन होएगा, उसमें चिड़चिड़ाहट आएगी, वो अकेले बैठना शुरू हो जाएगा, वो बाहर ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। फिर से उसकी आवाज में वो तंज, वो गुस्सा, वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आप, बिहेवियर इज द फर्स्ट इंडिकेशन विच यू कैन सी। हम यहाँ पे दूर बैठे हुए, हम नहीं देखेंगे, आप देखेंगे। और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। हमारे जो मरीज हैं, उनकी बीमारी जो है, कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग, इट्स वेरी मच कन्विंसिंग। जादूगर है वो इतना जादू चला देते हैं ना फैमिली मेंबर्स पे, कि अल्टीमेटली फैमिली मेंबर्स उनकी बातों में आ ही जाते हैं। जैसे कि इतनी दवाइयां चल रही हैं, ये देखो मैं 9 गोलियां दिन में खा रहा हूँ, इतनी 9 गोलियां देखो दे के मुझे इन्होंने ना मेरी सुध बुध ले ली है, मुझे बोंगा बना दिया है, मैं बिल्कुल ज़ॉम्बी हो गया। तो आपको बता दें, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, देन थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। पहले हमें कुछ दवाइयाँ कुछ देर के लिए चलानी पड़ती हैं, ताकि हम उनका मूड, बिहेवियर, थॉट सबको मैनेज कर सके। फिर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो धीरे धीरे कम होती है, फिर थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में और कम हो जाती है। एंड जो लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसमें शायद 1-2 गोलियां रह जाती हैं, सिर्फ काउंसलिंग और आपका साथ जुड़ना रह जाता है। पर वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं कई बार। इट इज ऑलवेज सेड कि 4% फैमिलीज जो होती हैं वो वहां तक पहुंचती है आउट ऑफ 100। क्यों? क्योंकि बाकी की सारी फैमिलीज इस कन्विंसिंग बीमारी में फंस जाती है। पहली चीज, वो सारे हमारे पेशेंट, देखो, वी ऑलवेज टेल यू वी आर हेयर। आप हमसे पूछो, आप हमसे एक एक दवाई पूछो कि ये पेशेंट ऐसे कह रहा है, तो आप बताइए क्या कम करना है, क्या नहीं करना। इट्स ऑल अप टू यू। जब आप आए, आपने देखा कि धीरे धीरे पेशेंट का वो तंज, वो गुस्सा, वो खत्म हो गया, उसने पैरों को हाथ लगाना शुरू कर दिया है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं, अब वो गोरा दिखने लग पड़ा है। ऐसे भी कहते हैं फैमिली हमें, ए तो फेस निखर आया होते। अब वो स्मार्ट बनना शुरू हो गया है, अब वो बात थोड़ी अच्छी करना शुरू हो गया है, तो फैमिली को लगता है अब सारा कुछ ठीक है। छोटी छोटी अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू होता है, तो फैमिली को लगता है अब तो ठीक है वाकई। ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं डॉक्टर्स कि 3-6 महीने हो गए, अब तो दवाई बंद कर दें। तो 2.5 साल लगातार हमें ट्रीटमेंट में रहना पड़ता है। और कुछ बीमारियां जो होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, और कुछ ऐसी ओसीडी होगी, उसमें हमें थोड़ा लंबा करना पड़ता है ट्रीटमेंट।
तो हमें ये समझना है कि रिलैप्सेस को आइडेंटिफाई भी आपने करना है। अगर हम थक रहे हैं रिलैप्सेस से, तो कहीं ना कहीं फिर हमारी तैयारी में कमी है। ये जो हम बैठे हुए हैं ना फिर इन कुर्सियों पे, तो हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई। फिर हम सिर्फ बैठे हैं, बैठ के मिल के चले गए हैं। इसका मतलब है हमारा मोटिव सिर्फ सेशन में आने का है कि 1 घंटे बाद हमने अपने मरीज को मिलना है और चले जाना है। टेक अवे मैसेज हमने कोई नहीं लिया। हमारी तैयारी तब पूरी होएगी जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जो 7 हैबिट्स में है। बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब है पहले से ही तैयारी जो करनी है हमने, वो इन सब चीज़ों की करनी है। कि रिलैप्सेस भी हो सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, मूड की खराबी भी हो सकती है। इन सबको हमने देखना है। जैसे ही आपको लगता है जब एक बंदा नॉर्मल है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में है, और उसको जैसे मैंने बताया 7 डेज आपको देखना है, असेस करना है, सेल्फ असेसमेंट करनी है कि 7 दिन सेम मूड रह रहा है या सेम बिहेवियर रह रहा है या इरिटेशन रह रही है, स्लीप। आपके पेशेंट को आपने सिर्फ 1-2 दिन देखना है। एक नॉर्मल बंदा है उसको असेस करने के लिए 7 डेज आप देख सकते हो कि 7 डेज अगर सेम रह रहा है। पर जो पेशेंट इन ट्रीटमेंट है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट में चल रहा है, उसको 1-2 दिन भी अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इमीडिएटली जाना है डॉक्टर के पास, इमीडिएटली जाना है फिर थेरेपिस्ट के पास। उसको वेट नहीं करनी। जैसे जो हमारा पेशेंट ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में है और वो बाइपोलर है या उसको कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है साथ में, अगर उसके हमने 7 दिन वेट कर लिए या 10 दिन वेट कर लिए ये सोच के कि हमें जो फॉलो अप ट्रीटमेंट है वो तो 10 दिन बाद बुलाया सर ने, या हमें 15 दिन की दवाई दी है, तो फिर हमारे केमिकल लोचा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा केमिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा उन 7-10 डेज में। फिर उसको रिवर्स करने में बहुत टाइम लगेगा। तो व्हाट वी हैव टू सी, हमें इमीडिएट क्राइसिस इंटरवेंशन करनी है। एक दिन भी मूड खराब है, लेट्स गो एंड मीट सर, लेट्स गो एंड मीट आवर थेरेपिस्ट, लेट्स कॉल आवर थेरेपिस्ट कि आज नहीं कुछ ठीक लग रहा, आज इसको ठीक करना है। तो कमिंग फॉरवर्ड, मतलब रीलैप्स साइकिल की जो बात हुई है, वेदर फोरकास्ट क्यों किया जाता है? दैट फोरकास्टिंग हेल्प क्या करते हैं कि आगे फ्यूचर में कभी को क्राइसिस हो तो उसको पहले से ही प्रोएक्टिवली मैनेज किया जाए। आप देखते हैं जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली टीम होती है वो क्यों होती है? ताकि क्राइसिस वाली सिचुएशन से बचा सके। तो उसी तरह जो रीलैप्स में जब हम कह रहे थे, बहुत सारे वार्निंग साइंस होते हैं जो फुली इंडिकेट कर रहे होते हैं कि डेंजर का साइन अब बढ़ता जा रहा है। लाइक डैम का वाटर ले लीजिए, वहाँ पे लेवल्स होते हैं और जब हाईएस्ट लेवल आता है तो शायद वो खुल जाते हैं ताकि पानी अब बाहर जाएगा। तो उसी तरह जब हम वेट ना करें कि हमें जब ये इंडिकेटर्स मिल रहे हैं रीलैप्स के, तो दैट मीन्स उससे पहले उसकी इमोशनल स्टेट चेंज होगी। मेंटली रीलैप्स वो कर रहा है कि मैंने सोच लिया उसने कि जाके मैंने पीनी है, जाके मैंने नशा करना है, वो शायद आपको नहीं पता लगे, बट उसकी मेंटल में जो ये रीलैप्स हुआ है वो आपको कहाँ दिखेगा? उसके हाव भाव में आप पहचान पाएंगे। वो तब होगा जब आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, चिड़चिड़ा हो गया, अकेला रहना शुरू कर दिया है, दोस्तों के साथ जाना फिर शुरू कर दिया है, फॉलोअप्स में आनाकानी शुरू कर दिया है, दवाइयाँ खा लूँगा, कर लूँगा, ज़्यादा है, हर चीज़ में नेगेटिव फॉल्ट फाइंडिंग है। तो ये आपको अगर ये रेपिटेटिव पैटर्न दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आप क्राइसिस वाले वो डेंजर लेवल्स पे 1 बाय 1 आप स्टेप राइज कर रहे हैं। सो ये इंडिकेटर्स बड़े डिटेल में वो कभी हम सेशन में फिर बात करेंगे कि व्हाट आर दोज इंडिकेटर्स जो आपको पहचानने हैं ताकि आप पहले से ही उस पर प्रोएक्टिवली काम करें। क्योंकि क्या है इस बीमारी में, आपकी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए हमारा फैमिली टीम में, फैमिली सपोर्ट में हम क्यों बोलते हैं कि एज अ टीम वर्क काम करना है, फैमिली को टीम में लेके आना है ताकि हम इस बीमारी में क्राइसिस को बचा सके। क्योंकि ये बीमारी बहुत पावरफुल है एंड द वर्ड क्राइसिस दिस इज कि बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत हार्डशिप्स हैं इस बीमारी में। इतना आसान सफ़र नहीं होगा कि आपने इनो खाया और 2 सेकंड में आपकी एसिडिटी गॉन, आपने डिस्प्रिन खाई और आपको 15 मिनट में आपको फ़र्क लग गया कि सिर दर्द मेरा गायब। क्योंकि हम जब ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि बड़े क्विक फिक्सेस रिजल्ट्स मिलेंगे, बट नॉट इन एडिक्शन।
तभी ये आज जो थीम लिया गया, व्हाई देयर इज अ क्राइसिस इन एडिक्शन ट्रीटमेंट, इस बीमारी में इतने चैलेंजेस क्यों हैं, इस बीमारी में इतनी हार्डशिप्स क्यों हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये रीजंस क्या हैं जो इस बीमारी को इतना वो चैलेंजिंग बना रही है। So, जो इम्पोर्टेंट काम आप जो रूटीन में नहीं करने वाले, जो ज़रूरी काम थे, जिनको आपने नज़रअंदाज करोगे आप डेली लाइफ में, वही जाके कल को क्राइसिस या अर्जेंसी में चेंज होंगे। सो रिमेंबर दैट कि इम्पोर्टेंट काम जो रूटीन में आपने करने थे इस ट्रीटमेंट के हवाले अपने रिकवरी प्रोग्राम में, वो अगर आप मिस आउट कर रहे हैं तो क्राइसिस होगा ही होगा। मतलब आप देखो कि बाहर घास अगर ना काटी जाए तो वो भी बढ़ जाती है, पूरा बाग बगीचा, पूरी जंगली घास, पूरा जंगल बनने में तैयार हो जाता है। एवरीथिंग, हर चीज को अटेंशन चाहिए, हर चीज को ध्यान चाहिए। जहां पे आपका ध्यान हटा वहां पे दुर्घटना घटी। सो कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट कि क्राइसिस क्यों है एडिक्शन ट्रीटमेंट में। सो दैट इज लैक ऑफ रिसोर्सेस, limited access to quality treatment facilities and support system leads to crisis situation। एडिक्शन की बीमारी, सबसे पहले हम कहते हैं मेंटल हेल्थ में कोई बात नहीं करता। मेंटल हेल्थ में सबसे डार्क कॉलम है जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा, वो है एडिक्शन। सबसे डार्केस्ट जो कॉलम हम मेंटल हेल्थ में पढ़ते हैं वो है एडिक्शन, जिसके बारे में ना कोई सुनना चाहता है ना कोई बताना चाहता है। सबसे डार्क कॉलम है एडिक्शन मेंटल हेल्थ में। एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज किस चीज़ों को लेके आते हैं क्राइसिस में। हमारा एक इमेज क्या है, नशे वाले पेशेंट को जब हम देखते हैं, जब हम सड़क में देखते हैं किसी नशेड़ी को, द फर्स्ट वेरी थॉट आपके मन में क्या आता है? आप देखते हैं रिक्शा के ऊपर लोग ऐसे ही लेटे होते हैं, सड़क पे लोग नशा करके फुटपाथ पे ही सोते होते हैं। क्या आपके अंदर कंपैशन आती है कि आपके अंदर वो बड़ी डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है? Years बैक मुझे याद है जब मैं कंपनी बाग वॉक पे जाती थी, व्हेन आई वाज नॉट इनटू फील्ड, तो वो कंपनी बाग में आई यूज्ड टू सी कि लोग नशा करके वहाँ पे लेटे होते थे। मैं कहते कितने गंदे लोग। तो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड ये पर्सपेक्टिव कब चेंज हुआ? जब मैं इस बीमारी, जब मुझे पता लगा एडिक्शन बीमारी है, तो सडन शिफ्ट क्या हुआ कि हाँ, यू गॉट दैट कंपैशन, यार ये तो मदद इनको मिलनी चाहिए, इनको मदद क्यों नहीं मिल रही। सो लैक ऑफ रिसोर्सेज, सबसे रिसोर्सेज का मतलब वो कौन से एसेट्स हैं, वो कौन सा सपोर्ट सिस्टम है। इस बीमारी में ना सपोर्ट सिस्टम है, ना रिसोर्सेज हैं लोगों के पास, ना जानकारी है, ना अवेयरनेस। इसलिए इस बीमारी में कहाँ पे हम टर्न इवेंचुअली देखते हैं? क्राइसिस में। अब आप देखिए कि क्या सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। यहाँ पे एक पेशेंट एनरोल्ड है, वाइफ हैज ऑलमोस्ट सेड कि मैंने डाइवोर्स लेना है, सिस्टर शी इज लिविंग इन अब्रॉड। अब पेशेंट को जाना था अपने लीगल केस के लिए, नोबडी वाज देयर। अब ये बताइए कि ये जो पेशेंट जिनका लीगल केस है, उनको छुट्टी पे जाना पड़ रहा है 2 दिन के लिए, और वो गए भी हैं, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज, नो सपोर्ट सिस्टम। क्या पेशेंट का प्रोग्नोसिस आपको लगता है गुड होगा कि बैड होगा? मतलब पेशेंट यहाँ से जाएगा, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन मेडिसिन पे चेक करेगा, कौन फॉलोअप के लिए मोटिवेट करेगा, कौन दिल की बात पूछेगा आज तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या ये सपोर्ट सिस्टम है उस पेशेंट के मैं पास? इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जिस पेशेंट की ये बात की जा रही है, वो पेशेंट पिछले 4-5 महीने से ही वाज कंटैक्टिंग अस, ही वाज आवर ओल्ड पेशेंट, राइट। उनकी सिस्टर ने भी कंटैक्ट किया, प्लीज हेल्प, समहाउ ही रीच देयर। बट जिस दिन वो यहाँ शिफ्ट हुए, उस दिन आई गॉट टू नो कि ये क्राइसिस है, देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर। एंड आई मस्ट टेल यू कि हम एज अ टीम सारे बैठ गए कि अब करेंगे क्या। मतलब आर वरी वॉज कि वील हैंडल दिस पेशेंट फॉर 3 months, वील डू एवरीथिंग, बट देयर इज नो सपोर्ट। एक भी बंदा नहीं है उसके पास, वो करेगा क्या? जब उसको हम कहते हैं क्रेविंग आएगी शेयर करो, हम कहते हैं मूड खराब होएगा शेयर करो, हम कहते हैं इमोशंस मैनेज करो, वो किसके साथ करेगा? वो अपने आप ट्रैवल करके कैसे आएगा? रास्ते में इतने चैलेंजेस मिलेंगे उसको, एडिक्शन जगह जगह मिल रही है, वो करेगा क्या? तो ये है लैक ऑफ सपोर्ट। एंड जब मैं यहाँ से आती हूँ, हमारे उधर पुल के नीचे एक ठेका है, एंड एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे आई सी there is one person lying down on the floor.
एवरी डे, इट्स एवरी डे प्रोसेस, रोज होता है। तो दिल करता है रुको गाड़ी से एक बार ही देखो, साइड देख लो सांस भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, बट क्या उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके पास उनको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, एक अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं है। I remember we had Dr. Amit with us, and इसी चीज पे, इसी point पे he was discussing that before coming here he was working in a cancer hospital in Mumbai, and he was telling me कि he was telling every loved one here, every individual here, you people are lucky, you've got a place where you can come, you people are lucky enough कि your family has sent you to a good institute। वहाँ पे व्हेन आई सी पीपल कैंसर हॉस्पिटल के बाहर, तो वो फुटपाथ पे लेटे होते हैं अपनी बारियों के लिए। इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है। सो राइट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन को आपने चुना, आप उस पे कर रहे हैं। वी आर लकी कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म तो है। व्हेन वी आर सेइंग I still have patients since 24 years who are still connected with us. I think sir कल की मीटिंग में बता रहे थे कि आज की मीटिंग में बता रहे थे कि 2007 में किसी पेशेंट ने ट्रीट किया एंड बाहर अब्रॉड कहीं वो बहुत हाई पोस्ट पे है, और उसने कोई रील देखी और रील देख के सर का फेसबुक से नंबर लिया एंड ही कंटैक्टेड अस एंड ही वाज स्टिल थैंकफुल एट दिस ईयर 24 में। ही वाज स्टिल थैंकफुल कि उस टाइम पे आपने मेरा ट्रीटमेंट ना किया होता तो मैं आज यहाँ पे ना होता। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कई बार कॉल करते हैं मेरे को, करते श्वेता मैम आपको याद है आई एम योर पेशेंट, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू, मेरे को लग रहा था आपका नंबर तो नहीं चेंज हो गया, सिर्फ एक थैंक यू नोट करना था कि मेरी लाइफ में चेंज हो गया। और हम कहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सच बता रही हूँ, माई पेरेंट्स वर वेरी सिक एंड दे वर ओल्ड, उनको कुछ कुछ ओल्ड एज प्रॉब्लम्स थी। हमारे पास किसी डॉक्टर का नंबर नहीं होता था भाई, हमें कोई डॉक्टर इतना इजी अवेलेबल नहीं होता था। आपके पास तो 14-15 साइकोलॉजिस्ट की टीम है, हर एक का नंबर है, ऑनलाइन आता है बार बार, एंड 2 बजे भी आता है, हम एड्रेस करते हैं, 3 बजे भी आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कॉल, एक्सेप्ट फॉर कई बार वॉइस कॉल में नहीं समझ आती है, वॉइस कॉल की थोड़ी साउंड शायद कम होती है, वो नहीं पता लगता, बट कभी भी कोई 3 बजे भी 4 बजे भी कॉल आती है, वी एड्रेस देम, वी टेक दिस एज एन ऑनर कि ओके गॉड हैज चूजन अस टू हेल्प समवन, कि कोई किसी की मदद करनी है इस टाइम पे, किसी कोई क्राइसिस में होएगा तभी इस टाइम पे कॉल कर रहा है। अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारे रिसोर्सेज कौन से हैं। मैं तो हमेशा कहती होती हूँ, मैंने अपने फोन लिस्ट में फेवरेट्स लिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने वो वाले अपने बंदे लिस्ट में लिस्ट डाउन किए हुए हैं जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है, ताकि मुझे फ़ोन खोल के ढूंढना ना पड़े। तो ऐसे ही हमें अपने रिसोर्सेज करने हैं, हमें अपना लिस्ट डाउन करना है, पेन डाउन करना है कि हम किसको रीच आउट करेंगे, हमने कहाँ जाना है जब हमें क्राइसिस होता है। सो रिसोर्सेज में व्हेन यू सी दैट, मतलब मनी इज़ वन, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन में इसलिए नहीं आ पाते बिकॉज कॉस्ट फैक्टर इज़ देयर। सेकंड, रिसोर्स अगर हम बात करें, हार्ड वर्क, इस ट्रीटमेंट में हार्ड वर्क पूरा चाहिए, बीइंग इट वो पेशेंट हो मेरा, बीइंग इट वो फैमिली हो, दोनों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बड़ा फिक्स्ड होता है कि बीमारी इनको है, यही इलाज कराएंगे और यही ठीक होकर शायद वापस आ जाएंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कॉन्ट्रेरी, इस बीमारी में सबको काम करना पड़ेगा, उस घर के माहौल को पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पेशेंट उस घर का बाय प्रोडक्ट है, उस घर के माहौल का बाय प्रोडक्ट है। सो नंबर सेकंड इज कि जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो ये जो मेरी मतलब मेंटल रिसोर्स है, मेरी एनर्जी का रिसोर्स है, क्या मैं उसको चैनलाइज कर पा रहा हूँ? आपका आना जाना ये भी एक रिसोर्स है जिसके लिए पैसे चाहिए, जिसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो क्या अवेलेबिलिटी है? बहुत सारे पेरेंट्स हम देखते हैं बिकॉज ऑफ देयर एज उनकी मोबिलिटी ईजी नहीं है, सब कुछ है, फिर वो कहते नहीं मेरे को ताकत ही नहीं, मेरे को हिम्मत ही नहीं हैगी कि मैं इतनी दूर आके इस प्रोग्राम ਨੂੰ समझ पावा। सो वी बीइंग ब्लेस्ड कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आप में ये सेकंड रिसोर्स भी है कि आपके अंदर वो अभी हिम्मत है, वो क्षमता है, आप में वो जज्बा है, आप उस रिसोर्स को चैनलाइज कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज आपका रिसोर्स कि आपके पास जो ट्रीटमेंट टीम की जो ऑप्शन है, ट्रीटिंग टीम की, वो कितनी भी साइंटिफिकली काम कर रही है। आर ट्रीटमेंट जब हम कहते हैं, हम आपके सामने सारी बात कर रहे हैं कि इलाज शुरू होता है ख़त्म नहीं होगा, इतनी बड़ी बात हम आपके सामने बैठ के इनके सामने बोल रहे हैं कि हमारा पेशेंट काम करेगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो लाइफ में ग्रो करेगा, प्रोग्रेस करेगा,
पर इलाज चलता रहेगा जैसे किसी डायबिटिक पेशेंट का चलता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि इनका 3 महीने में ये गोली खा लेंगे, उसके बाद इनके लाइफ में कभी कोई क्राइसिस या चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इस बीमारी में मुद्दा ही मूड का, उसकी सोच का और उसके स्वभाव का है, जो पल 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 अनप्रिडिक्टेबल है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। चौथा, मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स आपको, जो रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं, वो यहाँ पे FDA अप्रूव्ड है। मतलब एक साइकाट्रिस्ट आपको पूरा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है, वो एक साइंटिफिक बेस पे आपका इलाज कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वी शुड बी थैंकफुल कि ये भी रिसोर्स हमारे पास है। जो मेडिसिन लिख के जा रही है, कोई नीम हकीम नहीं है। सर बता रहे थे 1970s में जब उनके फादर वो मेंटल हॉस्पिटल में काम करते थे, तो वो एज अ वहाँ पे विजिटर अपने फादर के साथ जाते थे। तो सर पूरा वो सीन बताते हैं मेंटल हेल्थ वो हॉस्पिटल का, कि वहाँ पे सिर्फ ऐसे सेल्स बने होते थे जहाँ पे पेशेंट्स विदाउट और विद कपड़े हैं, देयर नो प्रॉपर सैनिटेशन, वहीं पे खाना, वहीं पे उनका यूरिन सब पास आउट वहीं पे था। सो आप देखिए कि हमारे पास रिसोर्सेज है, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इट हैज़ फुली इक्विप्ड विथ मॉडर्न फैसिलिटीज। सो ये भी एक रिसोर्स है। आप नशा छुड़ाओ केंद्र की जब बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या सुनते हैं? मार कुटाई, डिह्यूमनाइज वाला ट्रीटमेंट, जहाँ पे हिट करके, लेबल करते, पनिश करके ट्रीटमेंट किया जाता है। सो ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो यहाँ पे इस ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है। सो आप देखिए क्राइसिस क्यों है, बिकॉज कितने सारे फैक्टर्स हैं। सपोर्ट नहीं है घर वालों का, घर वालों की एनर्जी नहीं है, पैसा नहीं है, आने जाने की एसेसिबिलिटी नहीं है। अब सिस्टर USA बैठी है, हमारे लिए वो भी एक रिसोर्स है, बट इतना लॉन्ग डिस्टेंस में पेशेंट का कैसे हमारा प्रोग्नोसिस ठीक होगा? देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जो उसको घर पे देख पाए। सो लैक ऑफ रिसोर्सेज इन एडिक्शन ट्रीटमेंट इस बीमारी में क्राइसिस लेकर आता है। अब आप मतलब अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट अगर बनाएं तो आपको दिखेगा कि शायद आपके पास ये चीज़ें सब हैं, कि आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी प्रेजेंस इन चीज़ों को बताती है कि हाँ बाबा जी, वी आर ब्लेस्ड, वी कैन बी इन दैट 4% वाली फैमिलीज विच जो अपने इलाज नू पूरा सक्सेसफुल कर सकती है। देखो बीमारी प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस नीचे की तरफ भी लेके जा सकती है, जहाँ पे इफ अनट्रीटेड तो डेथ पक्की है। बीमारी प्रोग्रेसिव अपवर्ड की तरफ भी जाती है, जहाँ पे रिकवरी, सोब्राइटी वो भी गारंटेड है। प्रोग्रेशन है उसका। अब ये हमने चुनना है कि हमने, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, आज मैं समझ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं यहाँ बैठ के सुन के अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, ये रिसोर्सेज हैं मेरे पास। मेरे पास आज पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मैं यहाँ पर पहुँच के सही इलाज करा सकती हूँ। तो अगर ये रिसोर्सेज हैं तो फिर उनको लेट्स यूटिलाइज इन अ बेस्ट ऑप्टिमम वे में, क्योंकि समा ते खुद जाएगा, एनर्जी भी खत्म हो जानी है, साड़ी उम्मीद भी खत्म हो जानी है, तो फिर अक्के थक्के मतलब वो चकदे होए असी अगे नहीं वध पावांगे। सो लेट्स सी दैट जे रिसोर्सेज हैगे है तो उन्होंने पूरा पूरा इस्तेमाल करिए। सच्चा सौदा की बात सुनी होगी किसी ने, खटने की बात सुनी होगी। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने खर्चा है तो आपने खटा क्या है उसमें से, क्या लिया आपने उसमें से। आई एम टेलिंग यू, विद वन लव्ड वन इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। आपके एक लव्ड वन के साथ हम 4 या 5 लोगों का साथ में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। हम 4 या 5 लोगों की इमोशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी मूड को मैनेज कर रहे होते हैं। आप कहीं और चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी इतना पर्सनल टच कहीं मिलता है। मैंने तो बहुत जगह देखे हैं, मैंने बहुत हॉस्पिटल्स देखे हैं, बहुत सारी जगहें देखी हैं, जनरल हॉस्पिटल्स भी देखे हैं, बच्चों के हॉस्पिटल भी देखे हैं, बहुत हॉस्पिटल देखे हैं। ऐसा पर्सनल टच नहीं कहीं मिलता जहाँ पे यू आर बीइंग लिसन्ड, आपकी बात को सुना जाता है और उसको वैलिडेट भी किया जाता है। फिर ये नहीं कि सुन के अनसुना किया जाता है, उसको वैलिडेट भी किया जाता है। और जो मैम बता रहे हैं, जहाँ से हमने ये बात शुरू की है, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो नेटवर्क है, ये जो टीम है, अगर ये नहीं होगी तो आई एम रियली सॉरी, फिर आपको पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आई वुड से अबंडन द ट्रीटमेंट, छोड़ दीजिए बीच में। हमारी टीम, डॉक्टर साहब, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आपसे पैसे ले लिए हमने और हमने आपको बाद में कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं है। और हमारे लिए कई बार ट्रीटमेंट टर्मिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें कई बार ट्रीटमेंट टर्मिनेट पता है क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि उस पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। हमारे बार बार बुलाने के बावजूद फैमिली इज नॉट कमिंग। हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, अगर हमें डाटा इंटरवेंशन चाहिए या हमें बाकी चीज़ें फैमिली से चाहिए, वो हमारे पास आ ही नहीं रही हैं। जैसे मैम ने कहा कि आपके पास गाड़ी है, पैसे हैं, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बट आपके पास टाइम नहीं है यहाँ आने का। आपके पास टाइम नहीं है अपने लव्ड वन के साथ आके बैठ के सेशन करने का। और जो मैम ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा लोगों की फैमिलीज का ये एक मिथ है कि इदा इलाज करो, ए बीमार है, इदे दिमाग 'ਚ खराबी है, ए गुस्सा करता है, ए गालां ਕੱਢਦਾ है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ नॉलेज है। एंड रियली कई बारी ना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि एक फैमिली मेंबर में 3 या 4 फैमिली मेंबर्स हैं, उनके आपस के रिलेशनशिप्स इतने खराब होते हैं, इतने खराब होते हैं कि उनको जब हम बुलाना चाहते हैं या उन तक हम रीच आउट करना चाहते हैं, वो एक दीवार खड़ी कर देते हैं और हमें अपने तक रीच आउट नहीं करने देते हैं। एंड देयर लाइज द प्रॉब्लम। और फिर वहाँ पे बीमारी पनपती रहती है, वो बीमारी ठीक नहीं होती। तो हमारे लिए कई बारी वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो जाता है, बीइंग थेरेपिस्ट, बीइंग प्रोफेशनल, कि भाई ये तो पेशेंट है, ये ठीक हो सकता है, इसकी लाइफ में बहुत चेंज आ सकता है। अब आप देखिए लैक ऑफ रिसोर्स में ये जो बात मैम कर रहे हैं, डाटा इंटरवेंशन इज अ रिसोर्स फॉर द ट्रीटिंग टीम। अब जब हमें किसी पेशेंट का उसकी फैमिली मेंबर से राइट काइंड ऑफ डाटा इंटरवेंशन एज अ रिसोर्स ही नहीं मिलेगा तो हम क्या काम करेंगे? तो क्राइसिस तो पक्का है। मतलब आप देखिए कि सबसे बड़ा जो रिसोर्स टूल हमारे लिए है कि हमने अपने पेशेंट के बारे में उसकी लाइफ इवेंट्स को जानना है, तो वो अगर हमारे पास होगा ही नहीं, मतलब जब हम डाटा इंटरवेंशन फैमिलीज को कहते हैं कि प्लीज लिखिए, बिल्कुल उसको फिल्टर करके ना लिखना, ठीक है, जो हुआ अपने इंसिडेंट को लिख दो, आपके साथ जो जो हुआ, जो जो आपने देखा आप लिखो, बट आउट ऑफ लाइक शेम या आउट ऑफ लाइक फियर हम जब उसको उस रिसोर्स को भी ठीक तरह यूज नहीं करेंगे तो आपको लगता है क्राइसिस नहीं आएंगे। आपका डाटा इंटरवेंशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लैक ऑफ रिसोर्स, जब हमें पता ही नहीं, कई बार हम कहते हैं कि पेशेंट तो मैम +2 करके ही वहां चला गया था, मतलब जब हम केस डिस्कशन की, जब हमारा शाम को इवनिंग राउंड होता है, अब 18 साल में वो वहां चला गया, अब वो 32 साल का है, 18 से 32 साल का किसी को पता ही नहीं है कि जब वो बाहर कनाडा था उसने क्या किया। सो आपको नहीं लगता क्राइसिस होंगे? वो बीच का कहाँ पे है, उसकी लाइफ के इवेंट्स को किसने देखा, कौन हमें पेन डाउन करके बताएगा कि ये चीजें हुई? आपने तो जब क्राइसिस हुआ आपने उसको ट्रीटमेंट सेंटर में डाल दिया, पर ये जो बीच में 12 साल 15 साल का जो गैप है, ये जब रिसोर्स हमें नहीं मिलता तो ठीक है, फिर हम भी शुरू होते हैं कि चलो हम ताने बाने हम उसके बचपन से उठा के देखते हैं कि ये ऐसे होगा, ऐसे हुआ होगा, तो स्पेकुलेशन आपकी केस में बढ़ जाती है इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन टू द राइट पॉइंट। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब भी कोई काउंसलर आपको बोलता है कि यहाँ पे सेशन के लिए आए, ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग पे आए, ये क्या है? दीज आर द रिसोर्स जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। ये रिसोर्स है, ये प्लेटफॉर्म जो है ये एक तरह का रिसोर्स टूल है जहाँ से इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, अपने आप को अपग्रेड करना, वो इस रिसोर्स को, अगर ये रिसोर्स ना हो, बहुत सारे हम कहते हैं कि जब हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं, दे से दैट कि ट्रीटमेंट तो हमारा उन सेंटर्स में भी हुआ बट हमारी फैमिली को कभी इन्वॉल्व नहीं किया। सो दैट मीन्स फैमिली भी एक रिसोर्स है। तो इस ट्रीटमेंट में अगर उस रिसोर्स को नहीं यूज करते, क्योंकि हम इनके साथ नॉर्मल हॉस्पिटल में क्या होता है, किसका ट्रीटमेंट होता है? जो एडमिट होता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट किसका हो रहा है? पेशेंट के साथ उसके एक एक फैमिली मेंबर का। तो आप देखिए कि ये भी रिसोर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक फैमिली मेंबर को बुलाते हैं कि हाँ लेट्स सी दैट वीक लिंक कौन है, स्ट्रॉन्ग लिंक कौन है, कोडिपेंडेंट कौन है, हीरो रोल में कौन है फैमिली में।
तो ये आइडेंटिफाई करना ताकि हम उन रिसोर्सेज को फिर बेस्ट वे में हम अपने ट्रीटमेंट प्लान में यूटिलाइज कर सके। तो अब आप देखिए कि हाँ आपके पास रिसोर्स हैं तो उनको सही तरीके से प्लीज यूज दें, क्योंकि यहाँ पे एक नशा छुड़ाऊ केंद्र नहीं है जो हमेशा एक हर्मिटेज को या डी एडिक्शन सेंटर को इक्वल टू क्या बोला जाता है, नशा छुड़ाऊ केंद्र। इट्स ए लाइफ चेंजिंग लाइफ स्किल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप स्किल सीखते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। लाइफ बेटर होगी तो नशा अपने आप चला जाएगा, आपका पीएफसी चलने लग जाएगा तो नशा अपने आप आपका निकल जाएगा। So let's use our resources, money, time, family support, everything you have, your energy. विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट आई वांट टू से कि फैमिलीज में भी क्राइसिस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। हम बीइंग थेरेपिस्ट कई बारी डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एक बात बता दें, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू एक्सेप्ट इट, बट ये आपका ही बाय प्रोडक्ट है, ये समझेंगे हम। और सिर्फ एडिक्शन नहीं है, हम सिर्फ एडिक्शन को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जो आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं करेक्टर डिफेक्ट्स भी हैं। कुछ करेक्टर डिफेक्ट्स बिफोर एडिक्शन थे और कुछ करेक्टर डिफेक्ट्स आफ्टर एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमें ये सोच समझना है और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। हम चाहते हैं इसका गुस्सा ठीक हो जाए, तो क्या हमारा गुस्सा ठीक है? क्या हमने अपने गुस्से पे वर्क किया? क्या हम कहते हैं ये बड़ा गंदा बोलता है नशा करके, तो क्या हमने अगर नशा नहीं भी किया हुआ तो हम क्या जो लफ्ज बोलते हैं वो ठीक है? हमारा जो प्रोवोकिंग बिहेवियर है वो ठीक है? जब रिसोर्सेज की बात आ रही है तो हम HT प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। HT इज ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। हमारा एक बारी कोई हिस्ट्री हो रही थी तो पेशेंट ने अचानक से कहना शुरू किया कि मुझे बहुत सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं, ये वो सारा। और जब हमने फैमिली को बुलाया फॉर डाटा इंटरवेंशन या जो भी है, तो पेशेंट ने हमें बताया कि मेरी फैमिली में फलाने ने सुसाइड की थी, पर हमें वो हिस्ट्री में बताया नहीं गया था। तो हमने जब उसको पूछना शुरू किया तो पता लगा कि 7 मेंबर्स इन द फैमिली ऑलरेडी हैड हिस्ट्री ऑफ सुसाइड कर ही लिया था और 4 हैड अटेम्प्ट्स। इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी जो कि हमें बताई नहीं गई। और हमारे चैम्बर में देखते देखते हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई इस बात पे। तू मेरे पेकिਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, तू मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ इन द एंड दे सेड आप हमारे खानदान को क्यों बीच में लेके आ रहे हो। तो इतनी जो थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी उस फैमिली में। एंड इट टुक अस लॉन्ग फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि हम आपके पेशेंट की मम्मी या पापा के रिश्तेदारों को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं। हम आपको बीमारी बता रहे हैं कि आज आपका बच्चा अगर ये उसको थॉट्स आ रहे हैं कि उसको सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री में 7 लोगों की जान जा चुकी है, 4 ने अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो इसका कितना बड़ा रिस्क है फिर। तो हमें उसको किस ट्रीटमेंट पे डालना है। तो इतना क्राइसिस आता है कई बार हमारे पास इतना क्राइसिस आता है कि जो हमारी फैमिली होती है, फैमिली की विद इन इतनी लड़ाई चल रही होती है, विद इन इतना स्ट्रेस चल रहा होता है, आपस में रिश्ते बरकरार नहीं होते, जिसकी वजह से फायदा कौन उठाता है? बीमारी फायदा उठाती है उस चीज का। तो वी ऑल हैव टू बी एट वन प्लेटफॉर्म ताकि हम अपने लव्ड वन का ट्रीटमेंट कर सकें। मतलब ईच फैमिली मेंबर जो पेशेंट के साथ जुड़ा है, इट इज गोइंग टू बी अ रिसोर्स जो उसकी रिकवरी में उसको सपोर्ट करेगा। मतलब एक फैमिली मेंबर। अब आप देखिए कि अगर आपस में फैमिली चोंच लड़ाती रहेगी तो इसका मतलब रिसोर्सेज की एनर्जी तो अपनी लड़ाई में ही खत्म होगी। तो वो मेरे लव्ड वन को क्या सपोर्ट करेगी, मेरे पेशेंट का कैसे उसकी रिकवरी में उसकी साथ देगी। सो रिसोर्स मीन समथिंग दैट कैन सपोर्ट, एक वैल्यूएबल एसेट। तो आप ये सोचिए कि एक ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਤਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਸੋਰਸ ਫॉर them। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ, तो फिर लंबी हली गेम होगी है, बीमारी ने फायदा चुक लेना। I think we have covered these 2 points अभी भी, emotional turmoil
Addiction treatment often brings unresolved emotional and psychological issues to the surface and failure to address the underlying causes. Without addressing the root causes, just as ट्रॉमा, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज, ट्रीटमेंट सीम्स इनफेक्टिव. यही बात अभी हमने की है कि जो हमारी इमोशंस हैं, जो बीइंग फैमिली हमारे इमोशनल टर्मोइल चल रही है या फैमिली के विद इन जो ट्रॉमा या स्ट्रेस चल रहा है. मैं दोबारा आऊंगी इस पॉइंट पे. पुअर प्रोग्नोसिस एक टर्म होती है, फेयर प्रोग्नोसिस अच्छा प्रोग्नोसिस है, मतलब ये बच्चा ये बंदा आगे जाके लाइफ में अच्छा करेगा. एक होता है गुड प्रोग्नोसिस, ये बहुत अच्छा कर सकता है. जैसे मैम ने बोला बीमारी प्रोग्रेसिव है, ऐसे ही जब हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो हमारी जिंदगी भी प्रोग्रेसिव हो जाती है. बट एक होता है बैड प्रोग्नोसिस. बैड प्रोग्नोसिस वहां होता है जहां पे हमें फैमिली का रिसोर्स नहीं मिलता, हमें फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती, जहां हम कहते हैं हमारे लव्ड वंस ने अपने आगे एक वॉल क्रिएट की हुई है, वो ना तो उस वॉल से आगे निकलते हैं ना किसी और को एंटर करने देते हैं. हमारे लव्ड वन जो बीमारी में होते हैं उनमें इतनी रिजेंटमेंट्स होती हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने पास्ट इश्यूज को लेके, अपनी और सारी चीज़ों को लेके. वो अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स जब तक नहीं रिजॉल्व होंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इसी तरीके से कई बारी फैमिलीज ने भी वॉल क्रिएट की होती है. हम कुछ फैमिलीज तक रीच आउट ही नहीं कर पाते हैं, हम उनकी इमोशंस पे वर्क ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे क्लियरली से कि नो वी डोंट वांट टू चेंज आवरसेल्फ. तो वहाँ पे है हमारा बैड प्रोग्नोसिस. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये कितना इम्पोर्टेंट है. एंड जब भी हम डाटा इंटरवेंशन प्रेजेंट करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल इन द बिगनिंग. क्योंकि जब आप एक पानी है, पानी के ग्लास में वो मटके में नीचे मिट्टी बैठी है, जब आप उसको हिलाना शुरू करते हो तो वो सारी चीज़ें जब आप लिखने बैठोगे, जैसे वो सारी चीज़ें जो सेटल डाउन थी वो सब ऊपर आती हैं. उसी तरह हमारे इमोशंस जब हम डाटा इंटरवेंशन याद करके लिखना शुरू करते हैं तो वो सारा जब हिलेगा अंदर से तो बड़ी पेनफुल इमोशन सबसे पहले ऊपर आएंगे. और हम कई बार उन पेनफुल इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते, फिर हम कहते हैं कि रहने दो, हमने नहीं लिखना. जहाँ हम बड़ा वो क्या क्या कहते हैं कि लाया ला दो, बट फटाफट लिख के भेज दो. तो वी अंडरस्टैंड दैट कि क्राइसिस इन एडिक्शन ट्रीटमेंट क्यों आते हैं, बिकॉज इमोशनल टर्मोइल है इस जर्नी में. जब आप लिखने बैठोगे, ट्रीटमेंट पे आओगे, आपकी 10 साल की जो पेन है, जो 15 साल की जो आपकी रिजेंटमेंट्स हैं, जो आपकी उम्मीदें टूटी हैं, आपकी होप्स जो फुलफिल नहीं हुई हैं, जब आप उनको सोच के लिखने बैठते हो, इट गिव्स लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लॉट ऑफ पेन. सुई की तरह चुभती हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या हुआ. तो फिर हम जो काम मुद्दे का होता है लिखने वाला, हमारा सारा का सारा शिफ्ट पेन, गुस्सा, एंगर, रिजेंटमेंट में चेंज हो जाता है. तो हम अपने लव्ड वन को फिर उस नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं कि लाइक ही इज़ द वन, ये विलन है मेरी लाइफ का जिसने मेरी लाइफ को ख़राब किया. अब जब हम इसी माइंडसेट के साथ चलते रहेंगे, इसने मेरी लाइफ ख़राब की, जहाँ इसके कारण हमारा नुकसान हुआ, इसके कारण हमारी रेपुटेशन सोसाइटी में रिस्पेक्ट चले गई, सो क्राइसिस आएंगे ही आएंगे. सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब आप यहाँ पे आपको रीलिव करनी पड़ती हैं कई बार वो बातें जो आपके साथ पास्ट में बुरी हुई हैं बीमारी के अंडर, सो वो इमोशनल टर्मोइल आएगा. ये भी जब करेंगे जब इन्हें भी पता लगता है कि हाँ हमने ये किया, जहाँ वो आपसे सुनते हैं, तो दोनों जगह वो जैसे पानी हिलेगा तो सबसे पहले वो पेनफुल इमोशन सबसे ऊपर आएंगी. सो आपको उनके ऊपर काम करना है. अगर आपने अपनी रिजेंटमेंट्स, अपनी पेन, अपने फियर पे काम नहीं किया तो क्राइसिस इनएविटेबली फिर से आएंगे, बिकॉज ये चीज़ बड़ी पेनफुल है. तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जब हमारे इमोशंस को हमने अंडरस्टैंड नहीं किया, हमें गुस्सा है, हमें डर है, हम 24 घंटे स्ट्रेस पे रहते हैं, हम खाना नहीं खा पा रहे, हम अच्छे से सो नहीं पा रहे, फ्यूचर की कितना फियर है, आगे क्या बनेगा. तो ये सारे के सारे इमोशनल टर्मोइल में अगर हमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो वो क्राइसिस आएगा. तो हमें अपना भी लेंस इनके लिए बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या, इसने ऐसा किया था, वैसा हुआ था. अगर इन्हीं बातों पे अगर आप चलते रहे, सो दैट मीन्स कि फिर तो क्राइसिस ही आएंगे. तो इमोशनल टर्मोइल में आप अपने इमोशंस,
आप देख लीजिए, क्योंकि एडिक्शन वाली फैमिलीज में आई डोंट थिंक सो कि उनमें कभी कोई हैप्पी का इमोशन, हैप्पीनेस का इमोशन कभी उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। वो तो सालों साल डर वाला इमोशन के साथ रहते हैं कि ये फ़ोन भी बजा, कहीं पता नहीं कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई, अकेला गड्डी लेके तुर गए, गड्डी ना ठोक आए। हम तो कॉन्स्टेंटली इन इमोशंस के साथ अपनी लाइफ में रहे हैं। हमने तो अपने देखा है, मतलब एज ए ह्यूमन वी सी दैट, या लोग हंसते कैसे हैं, हम तो वो भी भूल गए हैं। तो हम इतने जो इमोशंस के इस टर्मोइल से गुजर रहे होते हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द स्ट्रक्चर और द टीम वी हैव टू समटाइम्स से नो टू फैमिलीज, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, चाहे वो कॉलिंग हो, चाहे यहाँ पे मिलाने के लिए हो। वी अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट अगर हम भी आपके साथ इमोशनली विड्रॉन या ओवरवेम्ड हो गए, तो फिर स्ट्रक्चर को कौन देखेगा, प्रोटोकॉल को कौन देखेगा? तो वी ऑल्सो वर्क डिटैच होके, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ योर लव्ड वन, फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो कई बार हम भी कहते हैं मैम इट रियली फील्स बैड कि हमें नो करना पड़ा किसी फैमिली को। आप हमसे पूछिए, वी ऑल्सो फील बैड, हम भी अपहीवल में चले जाते हैं, बट फिर हम देखते नहीं लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा किसका है? एट लास्ट लव्ड वन आपका वो ठीक होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इस चीज़ को भी कि इमोशनल टर्मोइल आता है। ये दिन त्योहार थे, हमने छुट्टी नहीं दी, शायद कॉलिंग हमने रिफ्यूज़ की होगी, जहाँ पटाखों के लिए हमने किसी को मना किया होगा, बट देयर इज़ ऑलवेज मतलब एक म्यूचुअल डिसीजन, एक टीम वर्क का कि फ़ायदा है, प्रोज होंगे कि कॉन्स होंगे, बिकॉज हम एक जने को कंसिडर नहीं करते, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल 40 पीपल एंड 40 फैमिलीज। सो कलेक्टिव डिसीजन होता है। सो अंडरस्टैंड दैट कि वो इमोशनल टर्मोइल में कहीं हम बह ना जाएं और क्राइसिस वाली सिचुएशन में ना आ जाए, क्योंकि वो क्राइसिस वाली सिचुएशन टीम के साथ कई बार आ सकती है कि आपकी रिजेंटमेंट टुवर्ड्स टीम आ जाए कि इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने जाने नहीं दिया, क्योंकि इनकी नाराज़गी तो हम पहले झेल रहे थे पिछले हफ्ते। फिर जब हमने एक सेशन किया कि लास्ट ईयर आपने दिवाली पे क्या किया, तो मैंने कहा अब आंसर मिला कि आपको छुट्टी क्यों नहीं मिली, क्योंकि किसी भी इंसान की सोबर दिवाली नहीं थी। तो अब हमें बात छुट्टी देने की नहीं होती, हमें होता है क्योंकि सेलिब्रेशन की इक्वेशन हमेशा नशे के साथ होती है, तो उस दिन डबल द फन, डबल द मजा, सो डबल द डोज। हमें डर इस चीज का होता। बाकी हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि नई एसोसिएशंस बनानी थी, तो हमने वेडनेसडे की सेलिब्रेशन की, और अगर आज का दिन है तो हम कह रहे हैं कि लेट्स विश्वकर्मा डे है, सो दैट मीन्स अपने स्किल्स को हम पॉलिश करें, क्योंकि उन्होंने तो शिल्प कला, उन्होंने तो कला पे ही, स्किल्स पे ही सारा आज का दिन अपना इन्फ्लुएंस किया। विश्वकर्मा डे इज ऑल अबाउट कि जो आप काम कर रहे हो उस स्किल्स को आप पॉलिश करते जाओ। तो आप भी पॉलिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और ये भी करेंगे। तो लेट्स सी दैट, सिर्फ माइंडसेट, हाउ वी सी द थिंग्स। जो आप चश्मा अपने लेंस अपने वो माइंड को लगा लोगे, आपको वैसी चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। मैम ने इमोशनल टर्मोइल की बात की है, तो जो डेटा इंटरवेंशन होता है ना, जब पहली बारी प्रेजेंट होता है ना, तो हमारे लव्ड वंस बहुत नाराज हो जाते हैं, हमारे साथ भी, फैमिली के साथ भी। फैमिली को ऑलरेडी डर होता है कि कुछ ऐसी बातें लिख दी, इन्हें तो भूलनिया नहीं, फिर इन्हें तो छड़निया नहीं। और फर्स्ट डाटा इंटरवेंशन हमेशा तकरार वाला होता है, इतनी तकरार होती है ना उसमें, फैमिली बता रही होती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरी गलतियां कोई मेरे मुंह पे बताएगा, 4 लोगों के बीच में बताएगा, तो हाउ वुड बी रिएक्ट, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? गुस्सा ही आएगा मुझे, इरिटेशन ही होएगी, जो नॉर्मल है, विच नीड टू बी एक्सेप्टेड, विच नीड टू बी एक्सेप्टेड। गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होएगी। ये जो बात की जाती है ना कि पास की चीजें क्यों कुरेदी जाती हैं डाटा इंटरवेंशन में, या ये चीजें क्यों बोली जाती हैं, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बीमारी को अपना रंग रूप दिखाया जा सके। हमारे लव्ड वन को हम बिल्कुल रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं, इंसल्ट नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बीमारी में हुआ जो कुछ हुआ, एंड जब तक वो रिजेंटमेंट्स रिजॉल्व नहीं होंगी यहाँ रहते हुए, घर हमने उसी सिचुएशन में जाना है। घर जाके अगर वही माहौल मिलेगा, वही रिजेंटमेंट्स मिलेंगी, और हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी आएगी, तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो डाटा इंटरवेंशन इज नॉट अ बेसिक प्रोग्राम, जो कई हमारे पेशेंट्स को लगता है। आप मुझे बताइए, अगर किसी की सर्जरी होती है
अब मेरे बेटे की यहाँ सर्जरी हुई थी, उसको यहाँ पे जब वो डली वायर फिर निकाली गई, उसके आज तक यहाँ पे लंबे स्टिचेस के निशान है। तो क्या मुझे नाराज हो जाना चाहिए डॉक्टर से? तो डाटा इंटरवेंशन भी तो वही काम कर रहा है। उसने चीर फाड़ किया, चीर फाड़ करके सच दिखाया ताकि ट्रीटमेंट हो सके। तो उसी तरह जब हम डाटा इंटरवेंशन करते हैं तो डाटा इंटरवेंशन का मतलब है कि आपको आपकी बीमारी की रियलिटी दिख जाए, बीमारी की, आप और आपकी बीमारी डिफरेंट है। तो वो चीर फाड़ में नाराजगी वाला नहीं है। ऐसे तो फिर कोई सर्जरी नहीं होती। क्या आप गुस्सा करते हो, आरसीटी कराने जाते हो, दांत यहाँ पे दर्द करता रहता है, आके आइसक्रीम खाते हो, खाना भी नहीं खाया जाता, तो आप डॉक्टर से नाराज हो जाते हो? वो भी तो ट्रीटमेंट कर रहा है आपको। तो पेन तो हर जगह कहीं ना कहीं आती है, वो पेन फिजिकल होती है, और डाटा इंटरवेंशन की पेन थोड़ी मेंटल और इमोशनल होती है, बट है तो ट्रीटमेंट ही ना दोनों चीजें। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि जो डाटा इंटरवेंशन है वो इमोशनल टर्मोइल से आपको निकालेगा। वो पूरा आपका मंथन कर रहा है। मंथन करने में आपके अंदर जो इमोशंस जो बैठे थे, जो अनरिजॉल्व आपकी पेन थी, उसको वो ऊपर निकालेगा और ताकि सफाई कर सके। आप बताइए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था? विष ही निकला था। तो उसी तरह जब कोई डाटा इंटरवेंशन निकलता है तो उसके अंदर से सबसे पहले कड़वाहट ही निकलेगी कि ये हुआ, एंड धीरे धीरे जब आप मंथते हैं उसको तो फिर चीजें साफ नजर आनी शुरू हो जाती है। और डाटा इंटरवेंशन सिर्फ फैमिलीज पेशेंट के नहीं लिखती, पेशेंट भी लिखता है फिर। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि जहाँ हमें फैमिलीज पे वर्क करना है, उनकी इमोशंस पे वर्क करना है, उनकी बिहेवियर पे वर्क करना है, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डू दैट ऑल्सो, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको सिखाते हैं कि जो हुआ वो हो गया, अब आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हम। दैट इज इम्पोर्टेंट। इन द सेम वे हम हमेशा कहते हैं अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सब अपने अपने ऊपर काम करेंगे, दूसरे को बदलने पे नहीं लगेंगे। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू हो जाए, अपने अपने ऊपर काम करेंगे तो चीजें वैसे ही बेटर हो जाएंगी। चलिए, सो लास्ट पॉइंट इज कि लाइक फेलियर टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज, कि खाली एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन एक सिर्फ पेड़ का फल है। अंडरलाइंग रीजंस बहुत सारे होते हैं। बचपन का कोई ट्रॉमा होता है, बचपन के कोई अनहेल्दी फैमिली डायनामिक्स होते हैं, उसके स्कूल में बुलिंग हुई होती है, एंग्जाइटी होती है, कभी उसके मूड के इश्यूज होते हैं। अगर इन इश्यूज को भी एड्रेस नहीं किया गया, सिर्फ आप नशे पे नशा कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, हमारा फोकस यहीं तक रहता है। अब वो नशा नहीं कितना बड़े महीने हो गए, ठीक हो गए, अंडरलाइन रीजंस थे वो नशे में क्यों गया था, नशा उसने कोपिंग स्किल क्यों बनाया था। जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे फिर सिचुएशन फिर क्राइसिस में कल को जाएगी। तो यू इट्स नॉट ऑलवेज कि खाली आपने वो मतलब जिस फल को कीड़ा लगा था, जहाँ आपने ब्रांचेस को ट्रिम कर दिया, आपने रूट पे काम ही नहीं किया। तो अगर जड़ पे काम नहीं होगा तो क्राइसिस आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि हमारा फोकस नहीं होता कि सिर्फ ये नशा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस प्राइमरीली इन पे होता है। मूड के इशू तो नहीं थे, सोचों के इशू तो नहीं है, एंग्जाइटी तो नहीं है, ओसी सिम्टम्स तो नहीं है, चाइल्डहुड में कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ जो उसको ट्रॉमेटाइज करके गया, स्कूल में तो नहीं कुछ ऐसा हुआ था, क्या बचपन में ही स्कूल से भाग रहा था, इसका मतलब बचपन में ही कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे होंगे। सो हमेशा उन अंडरलाइंग रीजंस को एड्रेस करना है। जो उसकी बीमारी, नशा एक एंड प्रोडक्ट है जो उसने यूज किया अपनी पेन, अपनी फियर, अपनी चीजों को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए। वो क्यों जरूरत पड़ी, उस रीजन, वो वाई को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना ज्यादा था कि उसके मतलब मूड को उसने ठीक किया तो वो उसमें बह गया फिर उसके बाद। सो इट्स ऑलवेज वर्किंग ऑन द रूट, फिर अपने आप आपका फ्रूट ठीक हो जाएगा। तो अगर क्राइसिस को अवॉइड करना है तो रीजंस ढूंढने हैं। क्यों उसको दोस्तों के पास अच्छा लगता है बाहर जाना, घर पे बैठना अच्छा क्यों नहीं लगता। तो लेट्स फाइंड आउट ये छोटे छोटे रीजंस। क्यों 11 बजे उसको नींद पड़ जाती है सुबह सुबह पीने की, क्या उसको लगता है उससे काम नहीं हो पाएगा, क्या वो नॉर्मल फील होने के लिए दोबारा पी रहा है 1 बजे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रीजंस, क्या वो रीजंस हैं जिसके कारण बार बार उसको उसकी तरफ जाना पड़ता। जैसे पेशेंट के रीजन फाइंड आउट करने हैं, वैसे ही फैमिलीज ने अपने भी रीजंस फाइंड आउट करने हैं। हम कई बारी
हमारे पास कुछ ऐसे फैमिलीज आती हैं, जैसे वाइफ्स आती हैं, तो वो बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर भी ड्रिंक करते थे, अब मेरी शादी हुई है तो मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करते हैं, तो मेरी तो ज़िंदगी वैसी ही रहेगी, उसी ट्रॉमा में रहेगी, ये सब चीज़ें रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वाइफ है एक पेशेंट की और उसने पूरी ज़िंदगी अपनी उस इमोशनल टर्मॉइल में बिताई है, अब उसको होप ही नहीं है कहीं, उसको फेथ ही नहीं है कहीं कि ये ठीक होगा। तो उसके अपने फियर्स हैं जो ट्रीटमेंट में आ रहे हैं आड़े, और वो ट्रीटमेंट को आगे नहीं जाने दे रहे। तो जैसे हमें लव्ड वन के इमोशनल टर्मॉइल और स्ट्रेस और ट्रॉमा और बेसिक चीज़ें देखनी है, हमने अपनी भी देखनी है कि आज मुझे क्यों फियर आ रहा है, आज मैं उदास क्यों हूँ, आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, आज मुझे होपलेसनेस क्यों लग रही है। कहीं इसके पीछे कोई मेरा पुराना पास्ट का कोई इवेंट या कोई पुरानी मेरी फेलियर या मेरा कोई पुराना कारण तो नहीं है। तो यू कैन कम एंड टॉक टू अस फॉर द सेम, ताकि हम अल्टीमेटली अपने लव्ड वन को बेटर कर सकें।